Hello guys, welcome to my next video. Today we will be studying about the neural crest cell derivatives and the structure arising from the surface ectoderm and neuroectoderm. This is the most frequently asked question from the embryology and it is also very important. So today let's study together. See, neural crest cell derivatives are very much in number, so we can easily remember them by the mnemonic MOTEL, MOTEL, MOTEL एंड पासेस, PASSES. इस निमोनिक से अपन इजीली याद रख सकेंगे न्यूरल क्रेस्ट सेल के डेरिवेटिव्स को. सो सी, फर्स्ट इज एम से क्या आएगा? मेलानोसाइट्स, ओके. ओ से ओडोंटोब्लास्ट, देन टी फॉर ट्रैकियल कार्टिलेज, ई फॉर enterochromaffin cells, okay. L for leptomeninges. What are leptomeninges, guys? A, that is arachnoid, and our arachnoid matter and pia matter. These two consist of the leptomeninges. So see, मोटेल passes का मोटेल में से क्या आएगा? M for melanocytes, O for odontoblast, T for tracheal cartilage, E for enterochromaffin cells, and L is leptomeninges, that is the arachnoid and pia matter. Now let's see passes से क्या आएगा. So P for parafollicular cells. This is little controversial. कोई बोलता है कि parafollicular cells आते हैं, कोई बोलता है नहीं. Parafollicular cells and PNS, that is our peripheral nervous system ganglia. Okay, this arises from the NCC, that is the neural crest cell derivatives. A for adrenal medulla, S for Schwann cells. Next S is of spiral septum of heart, E for endocardial cushions, okay. And last S is the all the cartilage and the bone of the skull cartilages and dermis arises from the neural crest cell. So see, pass. P for parafollicular cells and PNS ganglia, A is adrenal medulla, S for Schwann cells, S for spiral septum of heart, E say endocardial cushions, and S the skull cartilages and dermis. So these are all the neural crest cell derivatives that we can remember from the motel passes. This is the very easy mnemonic from which we can remember. अभी देखते हैं कि सरफेस एक्टोडर्म से क्या क्या आता है. सो सरफेस एक्टोडर्म का याद करने के लिए सी, फर्स्ट वी विल राइट कि कौन से पार्ट का क्या बनता है. तो जैसे पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओके. सो पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट इज ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म, एंटीरियर पार्ट, ओके, फ्रॉम द रैथकेस पाउच, ओके. देन ऑफ आई का कैसे याद रखेंगे? एक छोटा सा ऐसे निमोनिक है, LEL. सो फ्रॉम L लेंस, E फॉर corneal and conjunctival epithelium, okay, and L is lacrimal and tarsal gland, okay. Pituitary का anterior part, eyes का lens, corneal and conjunctival epithelium, and last है lacrimal and tarsal gland. ear का सो वी नो दैट कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसमें तो सारे तीनों लेयर कंसिस्ट है. सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एक जो है जो सरफेस एक्टोडर्म से, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. देन ग्लैंड्स आर देयर. सो कौन से 3 ग्लैंड्स? वी कैन रिमेंबर इट बाय PSM. सी, जैसे अपन PSM सुपरफिशियली पढ़ते हैं तो वैसे हम याद रख सकते हैं कि सरफेस एक्टोडर्म मतलब ऊपर से. तो PSM दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड एंड मैमरी ग्लैंड, ओके. तो पिट्यूटरी का एंटीरियर पिट्यूटरी, आई में लेंस, कॉर्नियल एंड कंजक्टिवल एपिथेलियम, एल से लैक्रिमल एंड टार्सल ग्लैंड, ईयर का TM तो मतलब दैट इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अब तीनों लेयर से आता है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. ग्लैंड्स दैट इज PSM, दैट इज पैरोटिड, सिबेशियस एंड मैमरी. और क्या आएगा? सी, एनल कैनाल. पर एनल कैनाल का कौन सा पार्ट? वो भी सिर्फ बिलो पेक्टिनेट लाइन या पेक्टिनेट लिगामेंट, ओके, बिलो पेक्टिनेट लिगामेंट. एंड लास्ट में इनामल को क्या बोलते हैं? एमिलोब्लास्ट. सो गाइस, दिस आर ऑल द parts which can arises from the surface ectoderm, that is pituitary, eye, ear, glands and anal canal, that is below the pectinate ligament and enamel और ameloblast. अब देखते हैं कि न्यूरो एक्टोडर्म से क्या क्या आया. तो न्यूरो एक्टोडर्म नाम से ही पता चल रहा है कि जो सब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का है वो यहाँ से आता होगा, मतलब न्यूरो एक्टोडर्म से. तो देखते हैं. सी, ऑल द न्यूरॉन्स, ग्लायल सेल्स,
ग्लायल सेल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड सेल अराइजेस फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडम। पर एक्सेप्शन है यहाँ पे एक, तो सी एक्सेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ओनली टेस्टेड फ्रिक्वेंटली कि ग्लायल सेल्स तो इसमें है, पर एक्सेप्ट विच ग्लायल सेल, दैट इज़ द माइक्रो ग्लायल सेल्स। ठीक है, माइक्रोग्लायल सेल्स। देखो, माइक्रोग्लायल सेल्स आर नॉट अराइजेस फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडम। माइक्रोग्लायल सेल्स किससे अराइज होता है? एम से माइक्रोग्लायल सेल्स, एम से मिजोडम, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। ओके, तो ये एक्सेप्शन याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड फ्रिक्वेंटली। तो अपना हो गया न्यूरॉन्स, ग्लायल सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड सेल्स एक्सेप्ट माइक्रोग्लाया जो मिजोडम से होता है। अब इसमें देखेंगे कि ग्लैंड कौन सा, तो उधर देखा था हमने सरफेस एक्टोडम में कि पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट, तो यहाँ आएगा पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट, और एक आएगा पीनियल ग्लैंड। उधर तो हमने सरफेस था, मतलब ऊपर ऊपर से सरफेस एक्टोडम में से याद रखा था PSM, और इधर तो दो ही याद रखने हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। और है अभी यहाँ आई का सी स्पिंक्टर प्यूपिले मसल एंड डायलेटर प्यूपिले मसल अराइजेस फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडम। ओके, एंड रेटिना ऑप्टिक नर्व और सिलियारिस मसल, इतने पार्ट है आई के जो न्यूरो एक्टोडम से अराइज होते हैं। सो दिस इज ऑल एवरीथिंग दैट अराइजेस फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडम गाइस। न्यूरॉन्स, ग्लायल सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड सेल्स एक्सेप्ट माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया कैसे याद रखेंगे? एम से मिजोडम। ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी पोस्टीरियर पार्ट, पीनियल ग्लैंड, एंड आई में स्पिंक्टर प्यूपिले, डायलेटर प्यूपिले, रेटिना, ऑप्टिक नर्व एंड सिलियारिस मसल, ये सब न्यूरो एक्टोडम से था। तो ये सब था अपना न्यूरल क्रेस्ट सेल डेरिवेटिव्स। सरफेस एक्टोडम से क्या आएगा एंड न्यूरो एक्टोडम से क्या आएगा। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ like and share with your friends. Thank you for watching.